Hereby, once again we have assembled, and this time pandemic COVID-19 brought us to understand the concept of the satisfaction power. So hereby we will discuss consumer equilibrium, which is disturbed due to lockdowns, as the essentials are only available, and otherwise the income cycle is disturbed due to the standstill announcements. So hereby warmly welcome you in new phase of learning this digital pandemic COVID-19 outbreak, where we will discuss relationship between total utility and marginal utility, the satisfaction power of any commodity which is derived out of its utilization, its use. So let's check out. Utility, a word, stands for the satisfying power. Total means aggregate, marginal means additional or any extra. So hereby we will discuss total utility, which is a sum of all satisfying power. एक ऐसा कमोडिटी का यूज जो आपको सारी पावर इकट्ठी कर कर आपको सेटिस्फाई करे. और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एवरी एडिशन, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिले. दिस थिंग मार्क्स यू विद अ रिलेशनशिप बिकॉज टोटल इज सम ऑफ मार्जिनल. टोटल सारा सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आप एडिशनल को कंज्यूम करते जाएंगे. Total utility increases till the time marginal utility is positive, and it even tends that marginal utility will decrease but it will still positive, so TU will rise. TU reaches the maximum जब satisfaction maximum होगा जब additional zero होगा, that is point of sati. And now check it out the third one. जब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा तो MU जीरो होगी, वो पॉइंट ऑफ सेटी है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है. उसके बाद TU स्टार्ट करेगा डिक्लाइन करना, क्योंकि उसका डिटोरिएशन रेट MU के नेगेटिव होने से इफेक्टेड है, क्योंकि एडिशनल हमें जनरेट कर रहा है लॉस. जब लॉस है तो हम नेगेटिव में जाएंगे. Dear scholars, once again we have assembled, and this time it is online learning platform, and hereby we are discussing economics, and we were going to pursue with microeconomics, and this economics and microeconomics were going to make you consumer equilibrium we are dealing with, because when the production activity take place, so then we need to dispose it out the production, then we need consumer, and consumer is said to be monarch of market, and this market monarch means he's king. Monarch means king. And to have the consumer attention, so we've used one word, utilization or utility. It means need, and that need have to be satisfied. And hereby we are discussing satisfaction, and then we will going to discuss one approach which said to be utility approach. हम एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, फिर उसकी एक यूटिलिटी होती है, फिर हम उस यूटिलिटी को कंपेयर करते हैं. देन वी हैव टू कंपेयर इट आउट, एंड देन विद दैट इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. वन तो हम पूरा प्रोडक्शन का यूटिलाइजेशन कर लेंगे, देन इट इज टोटल यूटिलाइजेशन. Then that means that total utility. And another is marginal utility. Beta, this means addition. When we will consume one unit, only one unit, the next unit, number 1 के बाद जब number 2 unit count करेंगे, number 1 से number 2 तक जाएंगे, so then we will have this marginal utility. And that shows one relationship which is in front of you, where I have written this thing, and this is the graph and its presentation, and I have discussed the hypothetical schedule with you automatically in previous class only, so you can have the schedule from there, and we are going to move with the next session of the same topic. We are dealing with utility approach. So let's see utility approach. First, it has the relationship between the TU and MU. Total utility, that is summation MU. मेरे कहने का मतलब है टोटल यूटिलिटी समेशन ऑफ MU है, यानी कि टोटल इज इक्वल टू यू, आपकी कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स. मैं जब सारी यूटिलिटी यूज कर लूंगी मार्जिनल,
मार्जिनल का मतलब होता है नेक्स्ट यानी एडिशन। अब बहुत सारी एडिशन जो मैंने एक्स्ट्रा चपातीस खाई हैं, यहाँ आपका पिज़्ज़ा, 1 पिज़्ज़ा के साथ, रेगुलर पिज़्ज़ा के साथ एक मीडियम साइज पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया है, तो मैं दोनों को जब ज्वाइन कर लूँगी तो पिज़्ज़ा खाने की जितनी सेटिस्फैक्शन है वो टोटल यूटिलिटी, दैट्स। एंड देन TU इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मज़ा तब तक आएगा जब तक उसका बेटा मेरा पूरा स्टमक नहीं हो जाएगा। आफ्टर इट विल गोइंग टू बी मैक्सिमम, जब मेरा पूरे पेट भर जाएगा तो दैट TU विल बी मैक्सिमम और मेरे को अगला पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं करेगा, तो देन आपका क्या होगा, MU 0। फिर TU की एक ऐसी पोजिशन आएगी कि TU, अब ना पिज़्ज़ा मैं 2 चीज़ें एक जैसी खा रही हूँ, पिज़्ज़ा ही ले रही हूँ, तो मेरी सेटिस्फैक्शन कैसी होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ से MU नेगेटिव हो जाएगा, डिमिनिश होगा जहाँ से MU नेगेटिव होगा। जब मुझे पिज़्ज़ा खाने का, मेरा पेट भर गया, मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं है, तो मेरे को सेटिस्फैक्शन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब डिक्रीजिंग MU तो डिक्रीज भी होगा, मुझे पिज़्ज़ा खाने में मज़ा भी कम आएगा। फर्स्ट बाइट ज़्यादा टेस्टी लगेगी, सेकंड बाइट लेस टेस्टी लगेगी, थर्ड बाइट उससे लेस टेस्टी लगेगी, बट मेरा सेटिस्फैक्शन का रेट है इंक्रीज ही करता रहेगा डिक्रीजिंग रेट पे, यानी कि मेरा पेट तो भर रहा है ना, आई एम फुलिंग माई स्टमक, आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई माई all these needs, so I am going to consume it till the time MU will be 0। मैं तब तक कंज्यूम करूंगी जब तक मेरा MU 0 होगा। अब मैं इस वाले पॉइंट को कर्व पे समझाती हूँ। जब हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं, उसमें देखते हैं कि हमें कितने बेनिफिट्स होंगे, कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है क्या वो मनी की वर्थ रखती है, मैं इतने पैसे दे दूंगी तो सेटिस्फैक्शन लूंगी, अब क्या वो जो सेटिस्फैक्शन मैं ले रही हूँ दैट इज डिलीवरिंग मी द फुलेस्ट, सो वी हैव टू चेक इट आउट। अब उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। देखिए ये एक सिचुएशन है टोटल यूटिलिटी की। देखिए मैं उस प्रोडक्ट को तब तक परचेज करूंगी बेटा जब तक मुझे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही है, मैं उसे तब तक ऑर्डर करूंगी अगेन एंड अगेन जब तक मेरी उससे सेटिस्फैक्शन क्या नहीं हो जाती, एक्स्ट्रा यूनिट से 0। तो वो पॉइंट ये है जो आपने प्रीवियसली कर्व ग्राफ में देख लिया है, टेबल में देख लिया है, ग्राफ में अब आप देख रहे हैं, ये है मेरी एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मेरा मन नहीं है अब चीज खाने का, तो मेरा क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम, और मार्जिनल सेटिस्फैक्शन क्या होगा, 0। मार्जिनल सेटिस्फैक्शन होगा 0 और मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। अब देखिए मैं जब मुझे उस चीज का कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा तो मैं परचेज नहीं करूंगी, तो वो क्या हो गया, अब मुझे क्या दिखने लगेगा उसमें, लॉस। तो वो लॉस क्या कहलाएगा, MU की नेगेटिव साइड। MU की वो नेगेटिव साइड है जब मुझे उस चीज की नीड को अपनी पैसों की वर्थ में जब कंपेयर करूंगी तो मुझे वो क्या लगने लगे, वो चीज अब उतनी वैल्यू नहीं रखती, तो मेरी सेटिस्फैक्शन क्या होगी, कम होगी, मेरे से उसे लेने का ही मूड नहीं होगा। सो दैट्स वाई MU, उसकी एडिशनल सेटिस्फैक्शन यूनिट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसीलिए MU नेगेटिव। अब जब मेरी MU नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन में तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, वहां क्या होगा, डिक्रीज। तो इसीलिए मेरी टोटल क्या करेगी, फॉल। फिर नेक्स्ट देखिए MU जब तक राइज करती है पॉजिटिवली या फॉल करती है पॉजिटिवली, जब तक पॉजिटिव रहेगी, जब तक मेरी MU जो है, जो मेरी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है, यानी मैं जो एक्स्ट्रा यूनिट बाय कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा यूनिट बाय कर रही हूँ वो मुझे सेटिस्फाई कर रही है, तो मेरा TU राइज करेगा। देखो TU राइज कर रहा है, क्यों राइज कर रहा है, क्योंकि जो मेरी एक्स्ट्रा यूनिट है ना वो पॉजिटिव है, अभी तक मुझे सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि इस पॉइंट पर आएगी मेरी सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्या हो गया, MU क्या है, 0। इसमें MU क्या हो गई, 0। यहाँ पर आकर वो टच कर गई है एक्स एक्सिस को और अब वो राइज नहीं करेगी, और मैंने अगर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी तो मेरी स्टमक में 1 हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, मेरी सेटिस्फैक्शन कैसी होगी, नुकसान में आ गई, लॉस में आ गई, नेगेटिव हो गई, तो ऐसे लिए मेरा TU क्या कर जाएगा, फॉल। अब इसे चेक करिए, इसे चेक करिए बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, अगर आपकी ये नेगेटिव हो जाएगी, अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी
तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाके देखेंगे तो आपकी TU फॉल कर जाएगी. So let's check it out. Now check in the Zoom board look, and you already have learned the utility approach in the tabular form. So we were going to discuss it earlier only discussed. So now we are extending it out. So let's have a Zoom board look, and hereby we are concluding this relationship, and I will check it out the hypothetical schedule and this relationship with graph, and then this connectivity will bring you the ultimate analysis of utility relationship between total and marginal. जब टोटल है तो बेटा आप एग्रीगेट की बात करेंगे और जब मार्जिनल है तो एडिशनल की बात करेंगे. सो लेट्स कंक्लूडेड विद दिस सेज दैट TU विल बी मैक्सिमम व्हेन MU इज 0 एंड इट इज पॉइंट ऑफ सेटी एंड सैचुरेशन. यहाँ से आपकी डिमांड क्या करने लगती है, सिकुड़ने लगती है. आपकी सेटिस्फैक्शन क्या करने लगती है, सिकुड़ने लगती है. सिकुड़ने का मतलब होता है सैचुरेशन. और सेटी इसलिए क्योंकि पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल सिट. वो मूवमेंट दिखाएगा ही नहीं आपको. That's why it is SETI. That's why I've written marginal utility is equal to 0. This is point of SETI and saturation. यहाँ के बाद मूवमेंट ही नहीं होगी बेटा, कंज्यूमर को लॉस दिखने लगेगा. सो no production will be sold as the sales will not take place because consumer will not buy. और यहाँ से आपकी सेलिंग पॉइंट सैचुरेट हो जाता है, सेटिस्फैक्शन भी सैचुरेट हो जाती है और कंज्यूमर अल्टीमेट सिट कर जाता है. इसलिए पॉइंट ऑफ सेटी एंड सैचुरेशन. So let's conclude it for today with this note. So see you again soon with somewhere else. So let's have a PowerPoint. Thank you. So after having all the assessments from PowerPoint to original digital physical classes, it's all time to say a goodbye to each other with a recapitalization. टोटल यूटिलिटी पूरा सैटिस्फाइंग पावर एक कमोडिटी का एडिशनल यूनिट को सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने से आता है. उसकी पावर को अपने में समेट कर टोटल यूटिलिटी बनती है जो मार्जिनल यूटिलिटी का सम है. मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव होगी तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी. मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट के साथ डिक्रीज करेगी बट TU इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट के साथ क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है. So with this note we are concluding it today with a promise to see each other again.